امریکہ کشیدگی کا خاتمہ قریب تر، برف پگھلنے لگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان اسلام آباد میں اہم مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کا دعویٰ، امریکی وفد کی 23 رکنی ٹیم پہلے ہی اسلام آباد میں موجود۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں۔ ایرانی اسپیکر اور وزیر خارجہ بھی آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی مذاکراتی ٹیم ہفتے کو باضابطہ بات چیت کرے گی۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی وفد آج رات اسلام آباد پہنچے گا۔ ایرانی وفد ایران کی جانب سے پیش کردہ 10 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر سنجیدہ مذاکرات کرے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی عوام میں شکوک و شبہات پائے جاتی ہیں۔ مذاکرات کا مقصد خطے میں پائیدار امن اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر بات چیت کو فروغ دینا ہے۔ وفد کی آمد ایران پاکستان تعلقات میں تعاون اور تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس سے قبل آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز اور وزیر خارجہ پینی وونگ نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ کہا کہ یہ جنگ بندی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور جنگ بندی پر بات چیت، پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کو سراہا گیا۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح مذاکرات اور انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور کرشنر خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کو ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کا جامع پلان مرتب کیا ہے۔ صورتحال بگڑی تو دوبارہ حملے شروع ہوں گے۔ معاہدے تک امریکی بحریہ، طیارے اور فوج ایران کے گرد موجود رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئندہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اسرائیل نے جنگ بندی توڑی تو ایران معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ ایرانی حکام نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کو نہ روکا تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان لبنان کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات، پاکستان چین کاروباری تعلقات مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بزنس ٹو بزنس تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مشترکہ منصوبے دونوں ممالک کی معیشت کے لیے نہایت اہم ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کمپنی برآمدات پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ سال 2024-25 میں اس کا ایکسپورٹ ریونیو 54 ملین امریکی ڈالر رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، لبنان پر بمباری پر اظہار تشویش کیا۔ خطے کی صورتحال پر دونوں رہنماؤں کے درمیان تبادلہ خیال، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے مکمل احترام اور عمل درآمد پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم نے پائیدار امن کے لیے سعودی عرب کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل ایران سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے، مزید اہداف حاصل کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ بندی اختتام نہیں، ضرورت پڑی تو لڑائی دوبارہ شروع کریں گے۔ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ افزودہ یورینیم ایران سے ختم کر دیا جائے گا۔ ایران جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں۔ جنگ بندی اسرائیل کے مکمل تعاون سے ہوئی، مگر یہ آخری مرحلہ نہیں۔
पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंग बंदी के बाद ईरान का अहम इकदाम, आबनाए हुर्मुज़ में मुतबादिल रास्ते मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का खदशा है। बहरी जहाजों के लिए नए रूट्स जारी कर दिए गए हैं, जबकि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदाराना इनकलाब से ताउन लाजमी करार। बहरी जहाजों को हिफाजती उसूल अपनाने और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल करेगा। लाराक जजीरे के शुमाली और जनूब से गुजरने के नए रास्ते जारी, नक्शा भी शाया कर दिया गया। इमैनुअल मैक्रोन और एंथोनी अल्बानीज ने मुतालबा किया है कि जंग बंदी में लबनान को भी शामिल किया जाए। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म इमैनुअल मैक्रोन की ईरान के सदर और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू, जंग बंदी को खुशाइन करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि जंग बंदी तमाम महाजों पर नाफिज हो, जिसमें लबनान भी शामिल हो। इमैनुअल मैक्रोन के कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, लबनान और इराक के रहनुमाओं से भी राब्ते। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज ने कहा कि ईरान अमरीका जंग बंदी अहम पेशरफ्त लबनान पर भी लागू होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अमन, आलमी मफाद में मुस्तकिल अमन के लिए मज़ीद संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। गेंद अमरीका के कोर्ट में है। अमरीका को जंग और जंग बंदी में किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अहम बयान, कहा कि दुनिया जंग बंदी के ऐलान के बाद लबनान में होने वाले कत्ले आम को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमरीका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी के ऐलान वाला बयान भी शेयर कर दिया। लिखा कि ईरान और अमरीका जंग बंदी के शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान राबिता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल को जंग बंदी की इस्राएली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली ताहा अहमद खान ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान को एक मोतबर और मौसर आलमी सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया, जिसने आलमी कशीदगी कम करने और मुमकिना बड़े तसादुम को टालने में अहम किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर मुल्की क़यादत को खराज तहसीन पेश। ईरान और अमरीका कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। ताहा अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और सिविल और अस्करी क़यादत की मौसर हिकमत अमली ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन सिस्टम को कानूनी हैसियत दे दी। पंजाब काबीना ने क्राइम सीन यूनिट से कवायद मंजूर कर लिए। PFSA रूल्स 2026 के तहत अहलकारों को लीगल बैकिंग फराहम। शवाहिद इकट्ठे करने से अदालत तक मुकम्मल प्रोसेस रेगुलेट होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत शामिल करने की मंजूरी। हुक्काम के मुताबिक नए कवायद से तफ्तीशी निज़ाम में शफाफियत और कानूनी मजबूती आएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। आलमगीर खान, दुआ खान साबिर, खालिद महमूद और मेराज शाह को रिलीफ। अदालत का 30,000 रुपये फी कस मचल के जमा करवाने का हुक्म। वकील सफाई शुजात अली खान एडवोकेट के मुताबिक मुल्जिमान को रेड जोन में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान को मुकदमे में बाकायदा नामजद नहीं किया गया। ताहाल चालान भी अदालत में पेश नहीं किया गया, जबकि इसी मुकदमे में दीगर मुल्जिमान पहले ही जमानत हासिल कर चुके हैं। कराची के सान्हे गुल प्लाजा से मुतालिक अहम पेशरफ्त आ गई। इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी कायम। सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी के कन्वीनर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वज़ीर सनअत व तिजारत इकरामुल्लाह धारिजो कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेकर अपनी सिफारिशात वज़ीर आला को पेश करेगी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में इंसदाद तजावुज़ात और लैंड ग्रैबिंग कमेटी का चौथा इजलास। कब्जा माफिया और अराजी वागुजार के 21 केस का जायजा। 6 केसेस पहले ही हल हो चुके। बिला इम्तियाज ऑपरेशन, सरकारी और निजी ज़मीनों के कब्जों का खात्मा और शहरी शिकायत का फौरी अजाला। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मुतहर्रिक, शफाफियत और इदारा जाती हम आहंगी को यकीनी बनाने की हिदायत।
कमिश्नर कराची और आईजी सिंध की निगरानी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग जारी। इजलास में कारोबारी बरादरी ने बरवक्त कार्रवाई और पुलिस सपोर्ट की तारीफ की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत सुनी। मुतालिका हुकाम को शिकायत के फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। सादिया जावेद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत के मुताबिक अवाम और नुमाइंदों के दरमियान बराह रास्त राबते को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सिंध काबीना के अरकान भी बाकायदगी से अवामी शिकायत सुन रहे हैं। अवामी खिदमत का ये सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हो। कराची में अमन व अमान और कारोबारी सरगर्मियों में अहम पेशरफ्त। आईजी सिंध जावेद आला मोढो से विफाक एवानहाए सनत व तिजारत के वफ्द की मुलाकात। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी माहौल पर तवज्जो। ताजिरों का कहना था कि माजी के मुकाबले में कारोबार के लिए माहौल बेहतर और साजगार हो गया है। कौमी शाहराहें अब माल बरदार गाड़ियों के लिए महफूज हैं। आईजी सिंध जावेद आला मोढो ने कहा कि कच्चे के इलाकों से नोगो एरिया का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत के ताउन से भरपूर इक़दामात किए गए हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने शहरियों को खबरदार किया है कि शनाख्ती कार्ड अपडेट न होने पर मोबाइल सर्विस मुतासर हो सकती है। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमें ब्लॉक होने का इम्कान। मोबाइल सर्विस जारी रखने के लिए ख्वाइफ की तस्दीक लाजमी करार दे दिया। दूसरे नाम पर सिम इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गैर तस्दीक शुदा सिमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सार्फिन को मुश्किलात का खदशा। शहरी फौरी शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराएं। सर्विस बंदिश से बचने की हिदायत। सूबाई मोहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत का काटी का दौरा। सदर और कायम मुकाम पैटर्न इन चीफ ने इस्तकबाल किया। अवामी शिकायत के इंदराज और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। सुहेल राजपूत ने कहा कि शहरी घर बैठे शिकायत की कार्रवाई देख सकेंगे। काटी अरकान ने सेवरेज आलूदगी, निजी स्कूलों और सिंध फूड अथॉरिटी से मुतालिक मसाइल पेश किए। बच्चों के दाखिले, शहर में गुमशुदगी और आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर भी ज़ाहिर तशवीश। मसाइल के हल के लिए दायर इख्तियार के इदारों को बराह रास्त पाबंद करने और वज़ीर आला को आगाह करने की यकीन दहानी। मफाहमती याददाश्त और तहाइफ का तबादला। काटी सदर और सूबाई मोहतसिब ने एक दूसरे को यादगारी शील्ड पेश की। ऑपोजिशन लीडर ने कराची बल्दिया उज़्मा की सड़कों की मरम्मत में करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया। मलीर, कोरंगी और दीगर अहम सड़कों के फंड्स में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का दावा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। शहर भर में कचरे के ढेर, इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत करार। कहा कि 38 मिलीमीटर बारिश में कराची के डूबने पर हुकूमती कारकर्दगी सवालिया निशान है। एडवोकेट सैफुद्दीन का मुत्तादिद सियासी जमातों की हिमायत से अदम एतमाद कामयाब बनाने का दावा। पाकिस्तान सीनियर और जूनियर हॉकी टीम के लिए ओपन ट्रायल्स का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन वानी ने मंजूरी दे दी। सिलेक्शन कमेटी को ट्रायल्स के इंतजामात की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीनियर टीम के ट्रायल्स कराची, लाहौर और पेशावर में 13, 15 और 23 अप्रैल को होंगे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने वाले खिलाड़ी ट्रायल्स से मुस्तस्ना। जूनियर टीम के मुंतखब खिलाड़ी 1 मई से इस्लामाबाद में तरबेती कैंप में शरीक होंगे।